has been able to achieve are: number one, we have switched to cash and carry model, which means that our debtor days are reduced to 6 from 25 6 months ago. And this is the lowest debtor days in the building material industry. Number two is that the company is on verge of becoming debt-free, which is on the back of a very strong operating cash flow, which is again backed by the net working capital cycle of 7 days, again, which is the lowest in the building material industry. Number three is the market share expansion to 50% from 40% in the last 6 months. This was on account of our rural push, the head start which our plants gave right after the pandemic, and taking away market share from the small organized and unorganized players. Number four is the lower fixed cost. Like I said, the employee cost and the interest cost per ton. Employee cost is down by around 20% on per ton basis, and the interest cost is down by 75% on per ton basis in the last 6 months. The rural sales mix for the company has increased to 55% in the first half of FY21 versus 40% last year. Again, this becomes very important because this was part of our strategy that we have to focus increasingly on the rural sales push, and the economy will perform better at that side of the country. And the sixth achievement I'd like to highlight is the strong organizational build-up. 25 years of hard work of our chairman, managing director in building up the organization. It proved its resilience in the most crisis time. The way things were in the month of April and May, our production team, our sales team, our operation team, marketing team, everyone performed par excellence. And our performance in the first half of FY21 is the result of all this hard work. All these achievements that we achieved, now we are working harder to sustain these achievements as these have become benchmark for us. We are confident that this is achievable in the longer run, and we have set a 4-point strategy around this, which is: number one, working on the costing; number two, working on the value addition; number three, working on innovation; and number four, aggressive branding for our brand umbrella APL Apollo. So with these 4-point strategy, we are 100% sure that this performance has become benchmark, and we are going to perform quarter on quarter basis on this benchmark. With this, I would like to close our opening remarks, and we can open the floor for Q&A. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. This question is from the line of Jatin Doshi from Enam Asset Management. Please go ahead. Sanjay ji, congratulations. Thank you. On a wonderful set of numbers. Now, I believe your company is now actually getting into the new orbit of growth. I have a couple of questions. One is that your market share is, shifted from 40 to 50. How far can this market share go over the next 2 years? Second, that from what we are seeing now, I think by next year, at the rate at which you are progressing by F23, you will have nearly 1,000 crores of actually cash sitting in your balance sheet. So how would you utilize that going forward? And three, can you throw more light on the value-added products that can your margin improve from here over the next 24 months with value-added products, or you think this is the best you can do? Jatin bhai, when we talk about the market share, like this industry is almost 5 to 7 million ton of market. In this 5 to 7 million ton, 2 to 2.5 million ton is from the secondary material,
and 4 million ton to 4.5, depend on the situation. This is the total market. Out of this, the value-added product market is very less. Now our try is कि we convert this market. एक तो market जो grow कर रहा है वो grow करेगा, इस market को भी value-added product की तरफ divert करें. Like हमने pre-galvanized tube का market से हम बहुत तेजी से growth ले रहे हैं. इसमें हमारा लगभग मान के चलो कि इंडिया में 30% के आसपास मार्केट, जो भी 0.81 मिलियन टन के आसपास मार्केट है, ये 30% से ऊपर की ग्रोथ रेट पर हम इसको ले जाएंगे. नंबर 2, द अदर्स आइटम्स लाइक हम डोर फ्रेम बनाते हैं. डोर फ्रेम में हमारी ग्रोथ रेट जो है 40% के आसपास है. उसके हम प्लैंक बनाते हैं. प्लैंक में हमारी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास है. तो जितने भी न्यू यूजेस हम क्रिएट कर रहे हैं उससे भी मार्केट एक्सपेंड करेगा. एक तो नॉर्मल ग्रोथ है, जो ट्यूब इंडस्ट्री का नॉर्मल ग्रोथ आता है. एक जो नए नए यूजेस लेके आ रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल कि वॉट एवर द सिचुएशन हम ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे विद द न्यू इनोवेशंस. गैस को तो मैं बाद में आऊंगा, अभी बुक्स में आया नहीं है. और वैल्यू एडेड में आपको मैं बताऊं कि वैल्यू एडेड में हम और काम कर रहे हैं. अभी हमने जस्ट ये एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, कलर. This color tube is made not in India, in the world first time. हमने अभी जो अपने ये JSW या टाटा स्टील सब कलर क्वाल बनाते हैं, उससे हमने पाइप बनाया है. अब वो पाइप अभी हमने डोर फ्रेम में तो हमारा थोड़ा सक्सेस रेट अच्छा आया है. तो ट्यूब सेगमेंट में इसका जॉइंटिंग सिस्टम में हमने भी काफी काम किया है. मार्केट में भी हमने सैंपल्स बिजनेस शुरू किया है. तो लगता है ये हमको आने वाले 1 या 2 साल में हमारा गेम चेंजर साबित होगा. मैंने इसमें हम बहुत बुलिश है कि कलर ट्यूब में हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है. दूसरा बड़ा फोकस है बिल्डिंग मटेरियल में. आपको जो हैवी बिल्डिंग में मटेरियल लगता है, लाइक पीवी का जो टोटल मार्केट इंडिया में 10 मिलियन टन के आसपास का मार्केट है ये. उसमें अभी पाइप हार्डली 0.5 मिलियन टन के आसपास लग रहा है. बट अगर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड देखोगे तो हर जगह पीवी जो है 20% के आसपास रह गया, ट्यूब्स 80% के आसपास पहुंच गया है. तो उसमें हम एक अमेरिकन कंपनी है जैकलमैन, उसके साथ भी मिलकर काफी काम कर रहे हैं. और वी आर पुशिंग विथ 2-3 लोकल पीवी बिग गाइज लाइक जामिल, इंटराक एंड 1-2 स्मॉल प्लेयर, कि हम कैसे पीवी को इस मार्केट में पुश कर पाए. क्योंकि हमारा आने वाले जो टाइम में जो 500 स्क्वायर का मिल आ रहा है, वो उस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये मार्केट हमारा क्लिक कर गया, जो 10 मिलियन टन का पीवी का मार्केट है इंडिया में, और इसमें से वी आर थिंकिंग कि हम ऑलमोस्ट 0.5 या 0.1 मिलियन टन का ये मैंने मार्केट है, 1 लाख टन महीने का मार्केट हमारा बन जाता, तो फिर देयर इज नो लिमिट गेम. बट इस अभी सब किताबों में है, बट रिजल्ट हमको अच्छे आ रहे हैं. मैंने वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है 20-30% कॉस्ट कम हो जाती है. जो अभी कन्वेंशनल पीवी चल रहा है, जो गाटर है या सीट को वेल्ड करके वो लोग बनाते हैं. नंबर 2, इसमें वर्किंग टाइम जो है बहुत कम हो जाता है. अभी लाइक हमने इन हाउस अपने 1-2 सेट्स बनाए हैं, उसमें जो सेट्स बनने में 6-6 महीने लगते थे, हमने 2 महीने 2.5 महीने में सेट कर दिए हैं. तो 2 तो ये प्रोडक्ट है. तीसरा हमारा एक ट्राइकोट पे प्रोडक्ट फंसा पड़ा है, ILG, इनलाइन गैल्वेनाइजिंग. अब उस पर हमारा ये टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम चल गया है. हमको उम्मीद है कि हम अक्टूबर या नवंबर में उस प्रोडक्ट को भी इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट के लिए सक्सेस कर लेंगे. तो ये 3 प्रोडक्ट पर फॉर फ्यूचर वी आर वेरी होपफुल. बाकी तो हमारे प्रोडक्ट्स लाइक प्लैंक है, डोर फ्रेम है, ये तो रूटीन में आ चुके हैं, अपने आप धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहे हैं. बट ये 3 जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं कंपनी के लिए. तो 3 प्रोडक्ट पे हमारा काम बहुत ज्यादा चल रहा है. सो आपका एवरेज मार्जिन पर टन कैन कीप मूविंग अप. सेट अभी तो हमारा अभी तो देखो 3500-3600 रुपए टन है इस क्वार्टर का हमारा टारगेट. अभी पहला टारगेट हमारा 4000 के आसपास अचीव करना है. उसका 4000 को रूटीन बना के 5000 की तरफ जाना है. अभी 5 से ऊपर का मैंने कोई हमारे सामने भी विजन नहीं आया. बट कोई भी चीज असंभव नहीं होता, बात का देखेंगे. अभी हमारा टारगेट है फर्स्ट अचीव द 4000. आफ्टर दैट 4000 वी हैव टू गो टू द इन द नेक्स्ट ईयर 5000 का टारगेट को किसी तरह अचीव करें हम. Sure. So Sanjay ji, one very good thing you have done is you have reduced your debt completely and your profit is going up. So obviously your return on capital employed goes to 35-37% next year, which is commendable. And you will generate approximately, you will be sitting on approximately 1,000 crores cash in the next 18 months. So what are your plans for this cash?
जतिन भाई देखो, इस साल हमारा डिविडेंड मिस हुआ है, हमको वो भी कवर करने का है। हमारा कैपेक्स रुका पड़ा है थोड़ा बहुत के, जो कि अभी तक हमने फर्स्ट हाफ में सिर्फ 80-90 करोड़ का कैपेक्स किया है टोटल, प्लस एडवांसेस मिला के। थोड़ा बहुत पैसा हम कैपेक्स में भी लेके जाएंगे, और ये थोड़ा बहुत डिविडेंड पर भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत डेट को खत्म करने में पैसा लगाएंगे। अभी तो हमारा फर्स्ट ये 3 चीज पर टारगेट है कैश को यूटिलाइज करने का, डिविडेंड, आइदर डिविडेंड और आइदर बाईबैक। Thank you very much. Sorry to interrupt you, Mr. Doshi. I'll request you to come back in the question queue for a follow-up question. Next participant is Vikas Jain from Phillip Capital. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening. Congratulations on good set of numbers. Sir, looking at our current rate of 2 million tons on annualized basis, we have the history of very high growth rates, sir, and our capacity is roughly 2.5, 2.6. So, shall we assume that the next year a large capex is imminent and we have to increase this capacity either by organic or inorganic way? बॉस, ये और जो आप इंडस्ट्री ये कोई भी कंपनी खरीदने का बात करो तो इंडिया में अभी हम जिस लेवल पर हमारी थिंकिंग पहुंच गई है, उस टेक्नोलॉजी के लेवल पर इंडिया में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। तो वैसा तो ग्रोथ आने का चांस मेरे को बहुत कम लगता है। इन हाउस हम थोड़ा सा और 1-2 क्वार्टर को सस्टेनेबल करके हम जरूर थोड़ा सा अपना इन हाउस हम ग्रोथ के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे काफी एडवांसेज भी हमने दे रखे हैं, जिसको भी हमने स्लो डाउन कर रखा है काफी ज्यादा। तो हमारा जो रायपुर में हमने अपना लैंड लेके उसको भी स्लोली हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, उसको मे बी हम नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा तेज करेंगे अपने कैश फ्लो को देख के। ओके सर, अपना अपोलो गैल्वेनाइज और ट्राइकोट का अगर हम परसेंटेज वाइज देखें मार्केट शेयर तो स्टिल वेरी लो। तो अपना एस्टिमेट क्या है, हाउ क्विकली हम इसको कैसे रैंप अप कर सकते हैं, एंड आपके हिसाब से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मार्जिन पे नेक्स्ट ईयर? बस जीआई इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर। जब आप इंडस्ट्री में रहते हो ना, तो यू हैव टू फैमिलियर विद द इंडस्ट्री ऑल्सो। लाइक आप जिंदल्स है, सूर्या है, टाटाज है, वो लोग जीआई में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मेरे से बहुत ज्यादा। अब मैं जाके उनको अननेसेसरी पिन अप करूं, उनको पिन लगाऊं, उनको डिस्टर्ब करूं, आज वो अपने लाइन में खुश है, मैं अपने लाइन में खुश हूँ। तो आई डोंट वांट टू एंटर इन दिस लाइन इन द ह्यूज वे। थोड़ा बहुत हमारा 1 लाख 1.5 लाख टन के आसपास चलता है, मेरा उसमें ज्यादा कोई बड़ा स्कोप नहीं है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री अपने कॉमन प्लेटफॉर्म पर चल रही है, तो अननेसेसरी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। And anyways, the application is more towards application of GI is more towards water transportation, which anyways we have not focused in the past. Our 100% focus is on building material, structural steel tube, for which GI is not a product. हमको अभी इसी में बहुत स्कोप नजर आ रहा था। आई डोंट वांट टू पूरे इंडस्ट्री को मैसअप करूं, क्योंकि हमारे उस लाइन में उतरने का मतलब पूरा इंडस्ट्री मैसअप हो जाएगा। हम नहीं उतरना चाहते हम इतना। ठीक है, स्लोली हम अपना जो हमने अपना जगह बनाया वो रखा हुआ हमने। आप देखोगे इस क्वार्टर में, इस हाफ में हमारा 2% के आसपास गैल्वेनाइजिंग में ग्रोथ है। बस हमारे को ज्यादा बड़ा पिक्चर हमारे पास नहीं है इसके लिए। तो सर, जो ये मार्जिन एक्सपेंशन की हम बात करें तो 4,000 and 5,000, वो मेनली इज इट कहाँ से आ रहा है? इज इट कहाँ से आएगा बेसिकली? प्रोडक्ट बिजनेस, देन व्हाट आर द एडिशंस वेयर दिस मार्जिन कैन इंप्रूव? लाइक अभी आपको मैंने बताया कि हमने कलर पाइप पर हम काफी काम कर रहे हैं, बड़े सेक्शंस पर हम काम कर रहे हैं, ILG पर हम काफी काम कर रहे हैं। 3 तो हमारे मेजर प्रोडक्ट से आएगा, और प्लस छोटे छोटे प्रोडक्टों पर बहुत काम कर रहे हैं। प्लस ब्रांडिंग से अगर आप आज मार्केट में चले जाओ तो आज स्ट्रक्चरल ट्यूब में APL इज द नंबर 1 ब्रांड। आज हमारा पाइप मार्केट में सबसे महंगा बिकता है। कुछ हम ब्रांडिंग से मार्जिन निकालने में लगे हुए हैं, कुछ अपना फ्रेट कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हम अपनी कॉस्टिंग को कम ला रहे हैं। इन 3-4 चीजों का सबमिशन मिला के मिक्सर बना के मार्जिन हम टारगेट कर रहे हैं कि 5,000 तक पहुंचेंगे। Sorry to interrupt you, Mr. Jain. I'll request you to come back in the question queue for a follow-up question. Thank you. A request to all the participants, please restrict to 2 questions per participant. If time permits, please come in the question queue for a follow-up question.
Next question is from the line of Bharat Shah from ASK Investment Managers. Please go ahead. Sanjay ji, namaskar. I think this has been a great demonstration of entrepreneurship. थैंक यू भरत भाई, थैंक यू. एक ही केवल प्रश्न पूछना था संजय जी. We've been progressively seeing the value-added component of our business is growing at a little faster pace than the rest of the business. So currently, what kind of percentage of the total? It's about 15 to 20% is value-added, right, of the total mix? No. Totally almost हमारा 45% के आसपास है. Value-added component. या value-added products जिसको हम कहते हैं वो हमारा 45% के आसपास है. बेस हमारा 55% के आसपास है. तो मैं ट्राइकोट के नंबर गिन रहा था ज्यादा उसमें, बट फेयर इनफ. ट्राइकोट में तो भरत भाई सारा ही value-added है. उसमें तो हम बेस मटेरियल बनाते ही नहीं है. बिल्कुल. So over next 3 to 5 years, what kind of volume growth, in your opinion, of value-added will come, and what kind of the conventional product growth do you envisage? कन्वेंशनल में तो भरत भाई मैंने टारगेट बहुत कम ग्रोथ का है. मे भी सिंगल डिजिट ही ग्रोथ रहेगा हमारा कन्वेंशनल में तो. एंड वैल्यू रेट में हमारा टारगेट है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% का अपना ग्रोथ रेट लेके जाएं कि आने वाले विद इन 2 to 3 years हमारा वैल्यू रेट प्रोडक्ट जो है हमारा ये जो 45% है ये हमारा 75% क्रॉस कर जाए. Value-added part you're saying should grow at the rate of 40 to 50% per annum. नेक्स्ट ईयर से भरत भाई टारगेट तो हमारा यही है. Fantastic. Thank you, Sanjay ji. Once again, fantastic demonstration of entrepreneurship in a very, very challenging situation. Thank you, Bharat bhai. Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Madhav Marda from Fidelity. Please go ahead. Good evening, sir. Congratulations on a fantastic set of numbers in these times. Thank you. So my question was, our working capital has come down to less than 10 days. Just wanted to understand how sustainable this is, and can we stay at this level for the next coming period of time? बॉस ये जो अभी हमारा ऑलमोस्ट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल 7 days है और ग्रॉस में ख्याल से हमारा 40 days के आसपास है. आई एम टारगेटिंग टू कट डाउन दिस अगेन बाय 40 days टू रिड्यूस टू 30 days. अब इस पर हम क्या स्टेप उठा रहे हैं कि हमारे अभी टोटल वी हैव 11 प्लांट्स. अब उसमें हम 2-3 छोटे प्लांट को बड़े प्लांट में हम शिफ्टिंग करेंगे. उससे हमारी बिजनेस भी कम हो जाएगी और इन्वेंट्री हमको हर प्लांट में इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है. तो अगर हम उस इन्वेंट्री को उस प्लांट से खत्म कर देंगे, बड़ा प्लांट उस मटेरियल को देगा तो फिर इन्वेंट्री भी हमारी कम हो जाएगी. तो मेरा टारगेटिंग इसको टेक टू दिस 40% टू 40 days टू 30 days. इसमें अभी भी हमारी इसमें काफी एफिशिएंसी है. हम इसको और सुधारने पे लगे हुए हैं. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको ग्रॉस 30 days और ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज पर टोटल नेट पे हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पर ले आए आने वाले 2-3 क्वार्टर के अंदर में. अच्छा, ओके. एक्सीलेंट सर. And sir, one other thing, आपने I think last 1-2 quarter पहले मेंशन किया था that हम स्टील को कैश में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं एक बार जैसे अपना बैलेंस शीट आई थिंक नेट कैश हो ही जाएगा काफी सून. तो कब तक से FY22 में will we start buying steel in cash, sir? How should we think about that? और देखो बुक्स में कैश आते ही हम स्टील प्लांट वाले से ऑलरेडी टॉप पे हैं कि हम कैसे क्रेडिट की जगह इसको लाइक हो गया. अभी क्रेडिट पे भी उनका जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका जो होता है 4 to 5% मैक्सिमम होता है. तो 4 to 5% के कारण हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं. ओके, अच्छा, ओके. Thank you very much. ठीक है सर, ऑल द बेस्ट. Thank you. Next participant is Pallav Agarwal from Antique Stock Broking. Please go ahead. Yeah, good evening, sir, and congratulations on good set of numbers. I just have a query on our blended steel realization. So if you look at the results for the steel companies, or JSW has announced so far,
where we've seen a sequential increase in the blended realization by almost 3 to 4,000 rupees per ton. But but in our numbers, I've not really seen on the blended basis. Basically, it's flat or marginally lower on a sequential basis. So, what could be the reason for that? Can you hear us? So you can see Deepak. You can see. So Pallav, see the realization of steel companies, there are 2-3 reasons of increase. Number one is of course the increase in the domestic prices, but also their value-added products, okay, which they have started focusing in the last 2-3 months. And for us also, if you see our raw material per ton has increased on quarter-on-quarter basis. नहीं but थोड़ा बहुत तो increase आया होगा. 1,000 rupees का. 1,000-1,500 का तो increase आया होगा तुमको. What's the number हमको work करना पड़ेगा. There is increase in the steel prices, but why don't maybe the mixing of the ये product mix के कारण हमारा realization कम ज़्यादा नजर आ रहा होगा. I don't know because I don't study the numbers in this way. तो ये अनुभव आपको कल इसका अलग से जवाब दे देगा. क्योंकि स्टील प्राइसेस तो लाइक हमारा जुलाई में स्टील प्राइस टोटल कम हुआ था 3,000 एंड अगस्त से सितंबर में बढ़ा था 4,000. तो टोटल इम्पैक्ट 1,000 रुपीज प्लस के आसपास का है. तो नंबर में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो. इसको हमने स्टडी नहीं किया है. मे बी थोड़ा ब्लैक मटेरियल ज्यादा बिका होगा, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब कम बिका होगा या गैल्वेनाइज्ड कम बिका होगा, इसके कारण से वो इम्पैक्ट नजर आ रहा होगा. आई डोंट नो. So right now I can't give you the right answer. Yes, sir. So I think partly जो आप बोल रहे हैं ना कि partly I think exports कम हुआ है तो domestic sales ज्यादा है, so वो premium भी बड़ा होगा. But मतलब 3,500 rupees is a big price increase. तो उतना मतलब so that's some price. 3,000 का price increase है. Total quarter में 1,000 के आसपास का price increase है. क्योंकि पहले ये जुलाई में 3,000 रुपए का रिडक्शन था एंड अगस्त से सितंबर में 4,000 रुपीज बढ़ा है. तो टोटल नेट इम्पैक्ट इज 1,000 रुपीज टन. Okay, sir. ठीक है. So second thing is, just want a clarification. अपना capacity is now 2.6 or 2.5. The presentation में I think Apollo Tricoat में there's been some reclassification I think of the product. So what is the exact capacity right now? So Pallav, this is 2.6 million because there has been increase of 100,000 ton in Tricoat. So Tricoat was 2.5 lakhs, which has increased to 3.5. And at group level, we have increased from 2.5 to 2.6 million. Okay. Okay, sir. That's it from my side. Thank you. Thank you very much. Next question is from Nisar from Key Investment Managers. Please go ahead. Most of my questions have been answered, but congratulations Sanjay ji and the entire team of APL to do what maybe Asian Paints have done in 2000 to 2003 on the working capital side. सेठ जी, मेरे को एक ही आपसे ये सवाल था कि अपना एबिटा पर टन जो एक्सपेंशन का आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि अपना टारगेट 4,000 है, how much of that is actually dependent on launching more value-added products and how much of that is dependent on our operating efficiency? Because we have reached a size and scale, and generally we see that when a company reaches a certain size, the EBITDA per ton generally expands due to the operating efficiency. That was my question, sir. नरसिंह भाई देखो, मैं 4,000 रुपीज टन के आसपास तो हम ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जुलाई में EBITDA मार्जिन काफी कम था, तो इस कारण इस क्वार्टर में नेट इम्पैक्ट ये आया है. राइट नाउ मेरे ख्याल से अगर हम 2 महीने का नंबर बनाएंगे तो हमारा 4,000 क्रॉस करना चाहिए. अगर हम अगस्त और सितंबर का नंबर बनाएंगे तो 4,000 क्रॉस करना चाहिए. तो आई एम वेरी होपफुल कि 4,000 के लिए मेरा सिस्टम तैयार है. 5,000 के लिए हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं. Wow. अच्छा, you are already at 4,000 EBITDA per ton. Wow. Okay. So, मैंने पता नंबर अलग अलग नहीं देखा है, पर मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर का नंबर मेरा 4,000 प्लस होना चाहिए. तो जुलाई में हमारा मार्जिन कम था, तो इसलिए पूरा एवरेज करके मेरा 3,500-3,600 रुपीज के आसपास आया है. Wow. Okay. Great, sir. Congratulations, and that answers my question. Thank you, Narasimhan. Thank you. Next question is from Urvil Bhatt from India Infoline. Please go ahead.
Hello. Thanks for the opportunity and congratulations on the good numbers. So just wanted to understand on the cost sustainability. I mean, how sustainable are these cost levels? And given that we are giving emphasis on branding, will our advertising spends again grow in the coming quarters? And second question is on the volumes. I mean, what kind of volume and demand visibility are you witnessing? And is this strong pickup largely some bit of pent-up demand? Or given that you have shifted to rural, is this more sustainable and we can see further fully utilization of 2.6 million ton in the next few quarters? So what's the view on the volumes in 22 as well? First, ये demand pent up है या एक्चुअल है, nobody can say right now. बट एक सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो मंथ्स थे लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने हमारे बिजनेस के ऑलमोस्ट हमेशा लास्ट मैं 15 साल से देख रहा हूँ, ये हमारे सबसे स्लो महीने होते थे. मैंने क्योंकि मानसून टाइम में कंस्ट्रक्शन वर्क काफी कम हो जाता है, तो बट उस पर भी हम काम करके गए हैं. तो आई एम होपफुल कि अब तो आगे हमारा सीजनल टाइम आ जाता है 7 दिसंबर ऑनवर्ड, तो ये डिमांड में हमको उतना बड़ा इशू नहीं आना चाहिए. नंबर 2, अभी सेकेंडरी और प्राइमरी में जितना गैप क्रिएट हुआ है, पहले जब ऐसा गैप क्रिएट होता था तो हम लोग एकदम बैठ जाते थे. इस बार हम उसको भी झेल के गए हैं. इसमें मे भी इसका ब्रांडिंग का इम्पैक्ट है, किस चीज का इम्पैक्ट है, इसका कोई पैमाना हमारे पास नहीं है नापने का. बट मेरे को लग रहा है कि अभी भी हम अपने जो बैड पैचेज से निकल रहे हैं. आगे तो अच्छा पैचेज हमारे सामने भी खड़ा है, हम अभी अच्छे पैचेज में घुसे ही नहीं है. नंबर 2, जो 2.6 मिलियन टन का कैपेसिटी है, अगर एक इंडस्ट्रीज एवरेज देखोगे आप तो 80-85% वॉल्यूम अचीव हो पाता है, जिस टाइप का हमको प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ता है. हाँ, अगर हाई डिमांड बिजनेस आ जाते, ये साइजेस आ जाते हैं, बिगर सेक्शन ज्यादा आ जाते हैं, या ये थिकर मटेरियल का डिमांड ज्यादा आता है, तो हम 2.6 का 2.7 भी कर सकते हैं, और मे बी 2.6 का 2.3, 2.2 के आसपास भी हम ऑन इन एवरेज करके हम वहां पर फुल्ली कैपेसिटी यूटिलाइज भी हो सकते हैं. ये डिपेंड ऑन द मिक्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज है. That's very good and thank you. And also on the cost side, I mean, if you can just give some guidance whether this cost is sustainable, because employee cost is down 5% on a YOY basis in first half, and other expenses have also been flat. So just want to understand your view on cost and whether given our focus on branding, तो अपना advertising and branding spend वापस से अपन नया कैंपेन कुछ लॉन्च करने वाले हैं कि कैसा रहेगा, तो उस पर थोड़ा गाइडेंस मिलता है. ब्रांडिंग तो हमारा इस क्वार्टर से ऑलरेडी चालू हो चुका है. इस क्वार्टर में मेरे ख्याल से 9 to 10 कितना खर्चा बुक किया, 8 to 9 करोड़ हमने खर्चा बुक किया इस क्वार्टर में भी. और हमारा 10 करोड़ से ऊपर का क्वार्टर का कोई ब्रांडिंग एक्सपेंडिचर होता नहीं है. मैक्सिमम हमारा 10 करोड़ का ही एज होता है. जो अभी वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट आवर हैदराबाद प्लांट टू हसूर एंड रायपुर. 50% हम उस प्लांट को हसूर और रायपुर शिफ्ट करते हैं, हैदराबाद प्लांट को. तो अगर आप उस प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो आज लाइक टुडे माय हैदराबाद प्लांट कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज पर मंथ का हमारा बिजनेस कॉस्ट है. और वहां पर अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो दोनों जगह पर मेरा कॉस्ट 10-10 लाख रुपए नीचे का मेन पावर का बढ़ेगा, 20 लाख रुपीज. तो आई कैन सेव 50 लाख रुपीज. ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर मैं अभी भी और सेविंग कर सकता हूँ. लगा हुआ मेरे को लग रहा है कि अभी भी हमारा बिजनेस कॉस्ट जो है ज्यादा है, ये और हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट थोड़ा सा अब स्लोली करना चाहते हैं. जो फास्ट ऑपरेशन थे वो हमने कर दिए है, इम्प्रूवमेंट्स पर हम धीरे करके काम करना चाहते हैं. That's very good to hear. All the best, sir. Thank you. Thank you very much. Next participant is Saurabh Padwa from HDFC Mutual Fund. Please go ahead. Sir, thanks for taking the question, and great set of numbers. Congratulations for that. So just wanted to understand how is our distribution currently? Have we added more distributors, and what would be the broad breakup in terms of cities and because we were working on expanding our distribution few quarters back. So where we reached that? No boss. हम डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं.
क्योंकि हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करेंगे तो हमको ब्रांड बनाने में दिक्कत आ रही है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड पर तभी काम करता है जब उसको कुछ एक्सक्लूसिवनेस या कुछ नजर आता है। तो हम एरिया वाइज तो फैल रहे हैं, बट एक जिसका हमने कुछ एरिया में उल्टा डिस्ट्रीब्यूटर कट्स किए हैं हमने। अब जहाँ पर 2-3 लोगों में आपस में ब्रांड को लेकर लड़ाई हो जाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कम बचते थे, तो वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑल्सो। तो पहले तो उनके पास हम अपना पैसा छोड़ के रखते थे, तो हमको था कि कहीं नहीं जाएगा, पैसा नहीं भी बचता तो हमारा उधार खड़ा है तो हमारा माल बेचेगा ही। बट अब जिस साहब हमने उससे कैश लेना शुरू कर दिया है, तो मैंने अब उसके थोड़ा मार्जिन पर भी हमको काम करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा अभी स्पेंड तो नियर फ्यूचर में नहीं करेंगे, 1-1.5 साल। हम उल्टा उनके मार्जिन पर काम कर रहे हैं कि उनके मार्जिन को कैसे एक्सपेंड करें कि हमारे ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देने में काम है। लाइक इस टाइम हमारा, आप अगर उत्तरांचल चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, वहाँ केरला चले जाओ, तो वहां पर पाइप का मतलब अपोलो है। वहां पर कोई कस्टमर आता है तो बोलता है कि ये नॉट 80-40 दे दो, मेरे को अपोलो दे दो। पाइप नहीं बोलता, अपोलो दे दो जी, 80-40-16 दे दो, 80-40-1 दे दो, अपोलो का चौखट दे दो। पीपल आर लाइक इनहेरेंट ब्रांड जो कहते हैं कि लोगों को पाइप से नहीं मतलब है। लाइक हमको पानी का बोतल लेना तो हम डिस्टिलरी बोलते हैं कि डिस्टिलरी दे दो, हम कभी ये नहीं बोलते मिनरल वाटर दे दो। तो कुछ जगह पर हमारा वो ब्रांड रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है, तो अब उस पर ज्यादा काम कर रहे हैं। Great, sir. And just one question related to the same. So for these newer products, हमारे जैसे नए products हैं जैसे चौखट है, so इसका जो target customer है, so the end customer है, he would be buying it currently from other channels. So what's our distribution strategy in those cases? बस अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग जो है 3 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग है। पहले हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं, वो आगे हमारे लगभग 50,000 रिटेलर्स को माल बांटता है। वो 50,000 रिटेलर कम से कम, अब हमारा डाटाबेस जो कहता है 4 लाख फैब्रिकेटरों को माल देता है। जो हमारा इन्फ्लुएंसर कह लो, जिसको अप्लाई पेंट पे पेंटर होता है, प्लम्बिंग में प्लम्बर होता है, उसी तरह हमारा जो इन्फ्लुएंसर है वो फैब्रिकेटर है। तो हमारा डाटा बेसिस में 4 लाख फैब्रिकेटर का है, वो उनको माल बांटता है। अब फैब्रिकेटर्स जो हाउस होल्ड लोग होते हैं उनके घर पर जाके काम करता है। तो ये हमारा 3 लेवल का बेस है। Great, and all the best, sir. Thank you. Thank you very much. Next question is from the line of Dhruv Jain. Please go ahead. Hi, sir. Sir, one question on the DFT pipe margins. We have seen that the DFT pipe margins have, over the last 4 or 5 quarters, despite in this quarter also, margins expanding, have remained in the range of 2,000 to 2,500. So, any thoughts there considering DFT is like a specific product to APL Apollo? बस DFT में मैं हर कॉल में एक ही बात क्लियर करता हूँ। DFT में there are 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एक तो हम सर्विस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स है DFT में। एक हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है DFT में। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट में तो हमारा मार्जिन इस समय 15 से 20% तक पहुंच गया है, और जो हम सर्विस मेंटेन करने के लिए बनाते हैं उसमें हमको जो नॉर्मल मार्जिन मिलता है वही मिलता है। उसका ओवरऑल बिजनेस में इम्पैक्ट नजर आता है, बट उसका अलग से कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। तो जो हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स, जो हमारा बिगर सेक्शंस है या छोटे साइज में स्पेशल शेप्स हैं, like DFT is helping us to make like now in the next 1 or 2 months I give a new slogan. We are not making tube, we are crafting the steel. हम जो स्टील को क्राफ्ट करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार से, तो जो हम क्राफ्ट कर रहे हैं वो हमारा इस समय वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 10,000 टन पर मंथ। 10,000 का मतलब 1.25 लाख टन पर एनम। उसमें हमारा जो मार्जिन है 15% के आसपास हो गया। नॉर्मल में हमारा मार्जिन 4-5% होता है, वही है। बट उससे हमारी सर्विस इतनी इंप्रूव हो गई कि हमारी ब्रांडिंग और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत उससे सपोर्ट मिल रहा है। ओके, एंड सर इन द लास्ट कॉल यू हैड हाइलाइटेड कि आई थिंक ये मार्जिन 25% के आसपास श्रिंक हो चुका है, तो ये क्वार्टर में व्हाट वुड बी द नंबर? और ये जो मार्केट शेयर हमने गेन किया है वो कौन से प्लेयर से होंगे? इज इट गोइंग टू बी द प्लेयर्स हु हैव टेक 2 lakh to 5 lakh capacity, or is it going to be the local guys who have say less than 2 lakh capacity?
फर्स्ट लोकल गाइज लाइक जो 10 साल का 10,000, 20,000, 15,000 टन माल बनाते थे महीने का 1,000-1,500 टन, वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा, जो मैंने पिछले 1 महीने के सर्वे में मेरे को आइडिया लगाया है, नाउ इन द मार्केट देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। एक जिसको सिर्फ अपोलो चाहिए, उसको प्राइस से कोई मतलब नहीं है। वैसे मेरे 500 लोगों का मैंने सर्वे कराया था, 500 लोगों में 50% लोगों ने 50% लोगों ने कहा कि उनके पास 50% कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ अपोलो चाहिए। दूसरा कस्टमर ऐसा है कि अपोलो नहीं है, मेरे को सस्ता चाहिए। जो सस्ता हो, तो वो आज के डेट में जिसका सेकेंडरी मटेरियल का माल हमसे 10 रुपए किलो सस्ता है। ऑलमोस्ट 10,000 का गैप है हमारे मैंने सेकेंडरी में और हमारे अंदर में, तो उनको फिर वो 10 रुपए किलो सस्ता वाला ही माल चाहिए। तो इस टाइप से मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है। तो जो ये हमारा ये ब्रांडेड मटेरियल में हमारा मार्केट शेयर गेन हो रहा है, और पीपल आर टू मच कंसर्न अबाउट ऑल्सो द ब्रांडिंग एंड गुड मटेरियल। लोगों के अवेयरनेस भी बढ़ रही है धीरे धीरे। हमने टीवी पे इतना ऐड दिया है, इतने फैब्रिकेटर मीट्स किए हैं, इतने रिटेलर्स मीट किए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। मेरे को ये लग रहा है लोग धीरे धीरे ब्रांडेड मटेरियल की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। Okay, sir. Thank you so much. Thank you very much. Next question is from the line of Nitin Jain. Please go ahead. संजय जी, गुड इवनिंग। संजय जी, आपने ना कॉल में बोला कि the value added product business, which is 45% of volumes, can grow at 40-50% for the next 2-3 years, or you're at least targeting for that. तो उसके लिए जो कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, और what can be the reasons that growth cannot be 40-50 and much lesser? What can be the reasons for that target not getting met? Shortage of capacities, market का behavior, कुछ समझा सकते हैं सर? इसमें सबसे बड़ा रीजन तो है कि हमारा इंडिया का पूरा एक पार्ट ही छूटा हुआ था वैल्यूएडेड प्रोडक्ट से। जोन पूरा प्लांट में बेसिक मटेरियल बनता था, वहां पर कोई भी वैल्यूएडेड प्रोडक्ट नहीं बनता था। दूसरा था मेरा बॉम्बे का मुरबाद प्लांट, वहां पर भी एक बेसिक मटेरियल बनता था, वैल्यूएडेड प्रोडक्ट कोई नहीं बनता था। तो अब हमने हैदराबाद प्लांट से काफी मशीनें रायपुर और वहां पर शिफ्ट की, जैसा मैंने लास्ट कॉल में भी बताया था, ड्यू टू फ्रेट फैक्टर में मुरबाद में। तो ये दोनों प्लांट में मेरा वैल्यू एडिशन काफी आने वाले 2-3 महीने में काफी बढ़ जाएगा। तो एक तो उससे हमको काफी नई मार्केट मिलेगी। नंबर 2, हम जैसे इस पर क्वालिटी पे और न्यू इनोवेशंस पर बहुत काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में कोई दूसरा कर ही नहीं पा रहा है। उससे भी मेरे को अपना मार्केट शेयर और ज्यादा इसमें गेन होगा। नंबर 3, इसमें यूजेज बहुत बढ़ रहे हैं। लाइक फोरप्ले में एक नई मार्केट है, वो फूड से मार्केट आ रही है मेरे पास, बिगर सेक्शन है, टीवी से मार्केट आ रही है मेरे पास, उधर से भी मार्केट कैप्चर हो रही है। अभी कल को इलेक्ट्रिकल कंडक्ट पाइप बेचूंगा तो सारी मार्केट अब टीवीसी की है, स्टील की मार्केट ही नहीं है वो, तो उधर से भी मार्केट खींचूंगा। इसलिए मेरे को बहुत आई एम वेरी होपफुल टू कि मैं मेरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आने वाले टाइम में 30-40-50% तक का भी ग्रोथ आ सकता है। तो उसमें कैपेसिटी क्रिएशन करनी पड़ेगी आपको, प्लांट में और कैपेक्स करना पड़ेगा उसके लिए? तो कैपेक्स करने, जैसा कलर में मेरे को पूरा कैपेक्स करना पड़ेगा। कलर में मेरे पास कोई कैपेक्स नहीं है, अभी तो रॉ मटेरियल स्टील प्लांट वालों से खरीद के ही बना रहा हूँ, तो उसमें करना पड़ेगा। ILG में मेरी कैपेसिटी ऑलरेडी एक लाइन की क्रिएट हुई भी, अगर वो लाइन मेरी नवंबर या दिसंबर में सक्सेस हो गए, उसकी मार्केट बनती है, तो उसमें और लाइनें लगानी पड़ेगी मेरे को। और आपको बिगर सेक्शन में मेरा 500 स्क्वायर की मिल आनी पेंडिंग है, जो आई थिंक द डिलीवरी टाइम ऑफ दिस मिल इन एनीवेयर मंथ ऑफ जून और जुलाई में वो मिल आएगी मेरी 500 स्क्वायर की। तो इस तरह से कुछ कैपेसिटी तो मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली टू ग्रो एट 40% और सो, लेट्स से 35-40% ऑल्सो, आपको करीबन 200-250 करोड़ लगाना पड़ेगा सर 1-2 साल के लिए इन द वैल्यू एडेड बिजनेस। एम आई राइट टू अज्यूम दैट व्हेन वी बिल्ड द ग्रोथ वी शुड बिल्ड दैट? 100% लगाना पड़ेगा। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत जगह पे स्ट्रक्चरल स्टील विल रिप्लेस कंक्रीट एंड टू इम्प्रूव द ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसमें कहाँ पर हैं अभी in your engagement with government, in engagement with consultants, in engagement with certain building developers, कहाँ पर आप देख रहे हो सर चेंज हो रहा है? जैसे एयरपोर्ट्स में हो रहा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हो रहा है, और वहां पर कंसल्टेंट्स का क्या माइंडसेट है, और वहां पर सरकार का क्या माइंडसेट है, वहां पर बिल्डिंग कोड्स में क्या चेंज आने वाला है या हो रहा है बिल्डिंग कोड के अंदर? और देखो, अब गवर्नमेंट की बात करते हो तो गवर्नमेंट तो इस मैटर पे ना माइनस में ना प्लस में है, वो तो न्यूट्रल पर्सन है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस समय गवर्नमेंट की अपनी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं इस समय गवर्नमेंट से कोई
हेल्प की उम्मीद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप किसी से आप मिल भी नहीं सकते, किसी मिनिस्ट्री में जाके कुछ भी नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम भी बहुत है। वहां पर मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता और एप्रिशिएट भी नहीं कर सकता हूँ। बट हमारे स्टील मिनिस्टर बार बार बोल रहे हैं कि स्टील का कंजम्पशन बढ़ाने पर काम करेंगे। बट जो ये एयरपोर्ट ही सब में उन्होंने डिजाइन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की जगह स्टील पर उन्होंने पास कर दिया है। ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है एंड पीबी है, इन दो सेक्टर पे हम खुद काम कर रहे हैं, जिसमें मतलब गवर्नमेंट का उतना नहीं, इनमें कोई रोल नहीं है। हमने लाइक पीबी में हमने जामिल करके कंपनी है, साउथ अरेबिया की ना, साउथ अरेबिया की कंपनी, उसका हमने काफी काम किया अभी। मैंने उसमें जो कॉलम हमने उसके लिए प्रोडक्ट भी अपना डेवलप किया, कॉलम पाइप। एक दो कंपनियां यहाँ पर छोटी सी कंपनियां हैं हरियाणा में, उन लोगों ने अभी हरियाणा गवर्नमेंट से जितने भी कोल्ड स्टोरेज बनते हैं आलू के लिए, उसके लिए उससे सारा पाइप के डिजाइन के ऊपर उसको किया। हमको कितने कोल्ड स्टोरेज का ऑर्डर मिला उसको? 17 कोल्ड स्टोरेज। एक कोल्ड स्टोरेज में कितना पाइप लग रहा है? 70 टन। लाइक he got 17 कोल्ड स्टोरेज ऑर्डर एंड 70 टन इच कोल्ड स्टोरेज टू उसमें कंज्यूम हो रहा है। तो ये ऐसा बहुत धीरे धीरे बीज पड़ रहे हैं। अंकुर फूटने में, पेड़ बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आई एम वेरी होपफुल कि ये बरगद बनेगा, पेड़ भी नहीं बरगद बनेगा। ठीक है सर, लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, इट इज अबाउट थिंग्स अबाउट चैनल फाइनेंसिंग। सर आज की डेट में आपका कुछ 600-700 करोड़ के आसपास चैनल फाइनेंसिंग है, तो सर आपका जो पार्टनर है उसको एक बार सॉरी 1 मिनट, 600-700 करोड़ हमारा कुछ चैनल कितना चैनल फाइनेंसिंग है तुम्हारा? 300 करोड़ 300 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास है बॉस। तो ये जो 300 करोड़ का चैनल फाइनेंसिंग है, कैन इट इंक्रीज एंड हेल्प यू फर्दर ब्रिंग डाउन योर रिसीवेबल्स? जो आपका रिटेलर है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फंडिंग कॉस्ट अंडर चैनल फाइनेंसिंग, और ये कितना बढ़ सकता है? आई नो इट हैज नो रिकोर्स ऑन यू, बट इज इट चैनल फाइनेंसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर रिटेलर्स टू कंडक्ट मोर बिजनेस एंड पिक अप मोर वॉल्यूम्स फ्रॉम एपीएल अपोलो? और सर जो हमारा 300 करोड़ का चैनल फाइनेंसिंग है ना, हमारा मुश्किल से 220 करोड़ के आसपास यूज हो पाता है। ओके। आजकल रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स भी पैसा लेने में इंटरेस्टेड नहीं है बॉस। सब लोगों ने इतना मजा ले लिया है अपने पैसे से काम करने का। Nobody is willing to sell the material in credit or keep the inventory in their house. Like हम पहले जो 2 लाख टन का इन्वेंट्री से काम करते थे, अगर आप मेरी बैलेंस शीट में देखो 1 लाख टन 1.25 लाख टन, मेरे 1,10,000 टन की इन्वेंट्री रह गई है मेरी बैलेंस शीट में टोटल। इन्वेंट्री 1,10,000 टन। आज हम भी अपने सप्लाई को बोलते हैं यार हमको ऐसे माल चाहिए, देना दे दे, नहीं तो हम नहीं काम करते। मैंने अब तो सर्विस का जमाना हमारा जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे नियर टू कस्टमर प्लांट्स, डीएफटी टेक्नोलॉजी, हम भी चाहते हैं कि मार्केट कैश और लेस इन्वेंट्री पर है, उससे हमारा प्लस पॉइंट बहुत बढ़ जाता है। अब कस्टमर का भी बेस ऐसा ही बन गया है, कस्टमर भी इतना, मैंने जो कोरोना टाइम में सबने देखा है, आई थिंक दिस इज नॉट ए चेंज फॉर एपीएल, दिस इज चेंज फॉर द होल इंडस्ट्री बॉस। ठीक है, मे भी हम एक पहले बंदे मुझे इनिशिएट किया, बस मेरे जितने भी दोस्तों से दूसरे इंडस्ट्री में बात हो रहा है या डीलरों से बात हो रही, बोलते हैं हम उधार माल नहीं बेचेंगे, मेरा माल 100 टन कम बिके, ज्यादा बिके, बेचूंगा कैश। Sir, thanks a lot. If more questions, I'll come back in the queue. Thank you. Yeah. Thank you very much. Next participant is G. Vivek from Goldman Sachs Investments. Please go ahead. Sir, yeah, first of all, congratulations for good set of numbers. So this is not Goldman Sachs, this is GS Investment, sir. And queries from my side is, सर एक तो सर आपका ये ब्रांडेड प्ले बहुत ही शानदार जा रहा है, जैसे आपने निकाला है अमिताभ बच्चन साहब का, बहुत अपीलिंग है और कैची है, बट मैंने थोड़ा सा चेकअप किया था अपने घर के लिए भी और बाकी जगह भी थोड़ा चौखट वगैरह की सप्लाई के लिए, तो ये सप्लाई के लिए 3-4 महीने वेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिचुएशन क्या है? मतलब अभी हम लोग जितना डिमांड इतनी आ रही है, हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो चौखट के लिए किस एरिया में आपको वेट करने के लिए बोला है? गाजियाबाद साइड में सर। गाजियाबाद में तो बहुत सुबह हमारा 24 आवर डिलीवरी सिस्टम है। नहीं, चौखट मिलनी चाहिए। मेरी एक आध जगह से बात हुई, मैं ज्यादा सबसे नहीं, आपको कहीं ना कहीं आप हमारे से आपको हेल्पलाइन नंबर होगा जो हम देते हैं, उस हेल्पलाइन में नॉर्थ जोन में आपको विदिन 24 आवर आपको चौखट मिलेगी। हमारा चौखट में फेमस होता है अभी नॉर्थ जोन अप टू ये एमपी,
जी। एमपी के आगे वेस्ट जोन एंड साउथ जोन में हमारा भी चौखट फेमस नहीं हो पाया है, बट एमपी तक आपको चौखट हमारी कहीं पर विदिन 24 आवर मिलनी चाहिए। फिर मैंने गलत आदमी से बात करी होगी सर, इसका मतलब बट दैट इज आप हमारी साइट पर जाके कोई भी डीलर का नंबर देख के आप फोन कर लो, आपको 24 घंटे के अंदर में चौखट मिलेगी, रेडी चौखट रहती है हर जगह। ओके सर। एंड सेकंड थिंग इज सर, दिस इज रिगार्डिंग बेसिकली जो हमारा ये ब्रांड प्ले तो बहुत बढ़िया चल ही रहा है सर, कमोडिटी टू ब्रांड का। एक मेरा सवाल ये भी था कि मर्जर का प्लान तो नहीं है आपका ट्राइकॉट का और अपोलो का, बिकॉज हमारा जो ये ट्राइकॉट है ये B2C प्लेयर है, तो इसका प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे, वेरस और हमारे मार्जिन भी अच्छे और इंक्रीज होते जा रहे हैं। वेरस जो ट्यूबिंग सेगमेंट है APL अपोलो का, उसमें मार्जिन कम रहते हैं, और अगर मर्जर हो जाएगा तो वी माइट नॉट गेट द प्रीमियम वैल्यूएशन विद B2C विद अदर कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल कैस्ट्रॉल ने जिस तरीके से PVC पाइप को ब्रांड में कन्वर्ट करके प्रीमियम वैल्यूएशन लिए, उस तरीके की बात। बॉस देखो, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा काम करना है। नंबर जनरेटिंग मेरे को नहीं मालूम क्या होता है, ट्राइकोट का मर्जर कैसे होगा, क्या होना नहीं होना, ये सब टाइम टू टाइम जो कंसल्टेंट या जो हमने कंपनियां रखी हुई हैं, जो भी हमारे सीनियर लोग जिससे कंसल्ट है वही बता पाएंगे। मेरा काम बिजनेस को डेवलप करना है, मैं बिजनेस डेवलप करने में लगा हुआ हूँ, इस पर अभी मैं कोई भी कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अपॉर्चुनिटी साइज सर कैसा लग रहा है हमारे वैल्यू एडेड ब्रांडेड प्ले का सर? किस चीज का अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है सर हमारी ब्रांडेड प्ले के लिए और जो ये ब्रांडेड एंड वैल्यू एडेड प्ले के लिए सर? बॉस देखो, मेरे को बिजनेस में आए हुए आज 34 साल हो गया। 34 आम आदमी 34 साल में अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लेता है, बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है, तो एक जनरेशन का काम तो मैं कर चुका हूँ, और मैंने आज तक इस काम के अलावा कोई दूसरा काम किया नहीं है। तो मेरे को जो चीज अच्छी लग रही तभी करता हूँ, तो मैं बहुत कंसेप्टिव आदमी हूँ, मैं बिल के अंदर घुस जाता हूँ, मैं बहुत बुलिश हूँ अपनी कंपनी के ऊपर। Sorry to interrupt you, Mr. Vivek. I'm requested to come back in the question queue for a follow-up question. Next participant is Amit Jaiswani from Stallion Method. Please go ahead. Hi, Gupta ji. Congratulations on a very good set of numbers. So my question is about the value-added side of, mostly on the Apollo Tricot side and your value-added side. Broadly, sir, you said that you will increase the value-added portion at 40% CAGR. That's your vision, of course, from 45% to 75%. Today, Tricot is about 13%. How large is the Tricot opportunity? Because you're adding new products there. First of all, how large is the Tricot opportunity? And second, what percentage of that value added would Tricot be? मेरे को ऐसे तो नहीं नंबर्स में आइडिया रहता है, मेरे को इतना मालूम है कि ट्राइकोट का अपना अलग बिजनेस है, उसमें अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक डोर फ्रेम ट्राइकोट में है, डिजाइनर पाइप ट्राइकोट में है, ILG ट्राइकोट में है, वो उसका बिजनेस उसमें जिस हिसाब से ग्रोथ आएगी उसमें आएगी। APL में कॉलम पाइप है, APL में है, ये कलर कोटेड प्लांट आ रहा है वो APL में आ रहा है, APL का काम APL कर रही है, तो उसका अलग अलग सेटअप के ऊपर पहले भी बैठाया नहीं कि ट्राइकोट का क्या परसेंटेज होगा, APL का क्या होगा। मैं तो ऐसे ग्रुप चलता हूँ कि जहाँ जिस कंपनी में जो सा बिजनेस है, जो कंपनी को सस्ता लगता है उस कंपनी में वो काम करने का है। Right. Sir, you're at 3.5 lakh ton on Tricot. How much do you expect to scale this up? You've scaled APL Apollo from 1 lakh tons 10-12 years back to about 25 lakh tons today. That's another level scale. Very few entrepreneurs in the country have been able to scale up like you have scaled up. In Tricot, you're at 3.5 lakh tons. Just on the vision side, in the next 3, 4, 5 years, what do you expect? How large can Tricot be? First, Tricot में 3 type of pipes. One is chaukhart, second is plank, third is designer pipe, fourth is ILG. उसमें जिस हिसाब से भी मार्केट एक्सपेंड होगा तो उस कंपनी में होगा, बाकी जो प्रोडक्ट APL करता है जो भी मार्केट एक्सपेंड होगा APL में होगा। तो राइट नाउ एनी गिव द नंबर कि आज मैंने कितना उठाया, टू टफ। हमको अपने कंपनी में एक प्रोडक्ट मालूम है कि इस कंपनी में ये प्रोडक्ट काम कर रही है, उसमें अगर कल को डोर फ्रेम 3 लाख टन बिकता है तो मेरे को ट्राइकोट में बनाना पड़ेगा। Right, sir. Got it. Thank you so much, and congratulations again. You're doing a commendable job. Thank you very much. Next question is from the line of Bhavin Chheda from Enam Holdings. Please go ahead. Congratulations to Sanjay ji and the entire team for continuous growth for last decade.
Just a few questions since you are now entering a very big league already. So this data reduction, the number of days what you have done, can you explain that in more details? Because that's a big number which has changed in these last 3 to 4 months, how you are able to implement. Because you said you have over 800 distributors, and obviously during the times of pandemic, because what we hear is the liquidity is very tight in the market. So where does these distributors got so much money to pay you off, or is there a securitization or channel financing which has happened? And how sustainable is this? If you can throw some light on the big working capital change, what has been done in the first half? सबसे बड़ा चेंज क्या है, मैं आपको सिंपल वे में बताऊं. पेंडेमिक टाइम जब हुआ, लाइक उस समय मेरा डेटर 500 करोड़ के आसपास मेरा डेटर था, 300 करोड़ के आसपास 350 करोड़ के आसपास चैनल फाइनेंसिंग था. टोटल 850 करोड़ का एक्सपोजर बैंकिंग और मेरा सिस्टम मिला के था. हम जब उस समय लोगों से बात कर रहे थे फोन पर पेमेंट के लिए, लोग बोले थे संजय जी आप पैसे मांग रहे हैं, हमको जान की पड़ी है. मैं भैया तूने अगर मेरे पैसे दे दिए तो मेरी जान तो कोरोना से तो बचा लूंगा, बैंक से कहाँ से बचेगी मेरी जान. तो हमने इन हाउस डिसीजन लिया कि चाहे हम धंधा करे या नहीं करे, हमने क्रेडिट पर माल नहीं बेचने का है. दूसरा, हमने देखा कि हम इतना घर में हैवी स्टॉक्स रख के बैठे रहते थे अपने में. कहते थे कि 200 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चल रही थी बॉस, तो उसको छूने में डर लग रहा था कि यार कुछ भी होगा तो गाड़ी का एक चक्का भी पहिए से उतर गया तो पूरी ट्रेन नहीं पलट जाए कहीं. जब ट्रेन ही पलट चुकी थी कोरोना टाइम में, मैं कहा अब तो जो भी हो रहा था खराब हो चुका है. अब एक जो हमारा फ्यूचर प्लान था कि हम 2 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, 1 साल बाद ये करेंगे, मैं सब कर दो. क्योंकि हर इम्प्रूवमेंट के पीछे एक ही डर होता था कि बिजनेस खराब नहीं हो जाए. उसमें हमारे एम्प्लॉइज भी डराते थे, हमारे और ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी डराते थे, हमारे डीलर भी डराते थे, हमारे सप्लायर भी डराते थे. हमने दिमाग से डर ही खत्म कर दिया. चला कि अब जो हो रहा था वो तो हो चुका, इससे खराब क्या होगा. तो हमने कह दिया कि हम ना तो इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे, हमको अपनी सर्विस पर काम करेंगे, ना हम डेट पर माल बेचेंगे. तो उस समय जो कहते हैं इनर स्ट्रेंथ जो कंपनी की होती है, हम वो उस समय निकल के आए कि लोगों ने देखा ये तो डेट पर पहले 10 दिन 20 दिन बड़े डीलरों से बड़ा रेस्पॉन्स आया. फिर लोगों ने बोला नहीं अच्छा संजय जी हमको 45 दिन देते थे, 30 दिन कर दो. हमने कहा नहीं देंगे, अच्छा 20 दिन कर दो. मैं कह रहा 45 डेज से 20 डेज पाने को तैयार है, तो 5 दिन पर भी अपने आप आएगा. हम एकदम एडामेंट हो गए कि हम धंधा नहीं करेंगे इस पर. और उस पर धीरे धीरे उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया. उसके बाद उन्होंने भी फील किया, जब उनके पास भी पैसा तो था नहीं, उन्होंने अपने आगे उधार कम किया, सब कुछ के एक पूरा चैनल बनाइए. तो उन्होंने भी कहा कि यार कंपनी का इतना पैसा लेना, आगे डीलर से इतना, रिटेलर से इतना पैसा लेना है, यार किस लिए करना है काम. तो पूरे सिस्टम में सुधार आया. आई थिंक दिस इज नॉट फॉर एपीएल अपोलो, एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कंपनी से आप बात करो, सब जगह आपको ये सुधार नजर आएगा. और ये आगे हिंदुस्तान का बिकॉज ये हिस्ट्री, इधर ये डेटर पर माल बिकता था, सब हिस्ट्री हो जाएगी. आज टू बी फ्रैंक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं उधार लेना चाहता है. नहीं सर, बहुत अच्छा किया है और अच्छा लगा. हम लोग को तो अच्छा ही लगेगा सर, आप वर्किंग कैपिटल कम करेंगे तो सर अभी जो सिचुएशन है आप बोल रहे हैं कि अभी डेटर्स डे हमको फ्यूचर में भी 10 दिन के नीचे रहेगा और चैनल फाइनेंसिंग आपकी 300 करोड़ पे रहेगी. ये इससे भी कम होगी, ज्यादा होगी? कम ही होती जा रही है, डेली बेसिस पर कम हो रही है. चैनल फाइनेंसिंग बढ़ नहीं रही है वो हमारे विदाउट रिकॉर्ड से पहली बात. तो दूसरा बात है वो 300 नहीं है, 220 210 के आसपास ही फिगर रह गई है. वो भी डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देने में लगा हुआ वापस. राइट. सो मेरा ये सेकंड क्वेश्चन था, अभी अपने नेक्स्ट ईयर तक तो फुल कैपेसिटी पहुंच जाएंगे, तो अपनी अभी ये 26 लाख से कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है अभी, ऑनगोइंग कैपेसिटी जो आप डाल रहे हो? बस प्री कोरोना का हमारा बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि कोरोना के बाद अपने आप को ठंडा कर दिया है. अभी हम इस साल में तो अपने सारे प्लांटों का रीसेटिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा फ्रेट फैक्टर कम हो जाएगा, थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की सेल हमारी बढ़ जाएगी 2.5-2.6 मिलियन टन पे. नेक्स्ट ईयर में हमारा रायपुर प्रोजेक्ट में हमने हाथ लगा रखा था काफी, उसमें हमने एडवांसेस दे रखे थे, 40-50 करोड़ के आसपास एडवांस दे रखा है. वहां पर हमारा अच्छा खासा विजन था, बट अभी हम उस पर कुछ भी कहने के पोजीशन में नहीं है. हमने 1-2 अपनी गाइडलाइन लाइफ में बनाई थी कि हम जो भी हमारा बिकता है ना
बना ली कि हमने बैंक से पैसा नहीं लेना, बाकी कुछ भी हो जाए। तो जो कमाते जाएंगे उसमें से कुछ डिविडेंड में लेके जाएंगे, कुछ कंपनी के अंदर छोड़ेंगे, कुछ कैपेक्स में लेके पैसा जाएंगे, मिक्स करके ग्रोथ तो लेंगे ही आगे, बढ़ना तो है ही। बट आज थोड़ा सा उस बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे, अभी हल्का हल्का कैपेक्स करके हम रायपुर में सिर्फ जितना डेवलपमेंट पर, लैंड डेवलपमेंट पे, इस सब पर काम करके रेडी फॉर मूव हो रहे हैं। Okay. Thank you, sir, or best of luck. Yeah. Thank you very much. Ladies and gentlemen, due to time constraint, that will be the last question for today. I will now hand the conference over to the management for closing remarks. Thanks, Nirav, and thanks to all the participants for being present here. I'm sure most of your queries would have been answered, and if not, you can reach us over email or phone numbers, and we shall reply to you. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone for joining us. Thank you. Thank you very much. On behalf of Ambit Capital Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.